अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ इंग्लिश से पोइम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। दिस पोइम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, Tagore is an Indian writer and philosopher. He began writing from very childhood. At the age of 17, he published his first book. He was a famous poet during the colonial era, writing poetry, prose, novels, short stories, and plays. He was awarded Nobel Prize in 1915. He also in 1915 he was awarded Nobel Prize for his famous book Gitanjali. He was also awarded knighthood by British King George V for his outstanding performance in literature, but he renounced this knighthood in 1919 because of the Jallianwala Bagh massacre. So this was brief introduction of this famous poet of India. This poem written by this famous poet Rabindranath Tagore, I cannot remember my mother. The poet lost his mother in his childhood. He was very young. He had not worldly senses. He had simple and faint idea about his mother. He knows nothing about her, but he feels his mother's presence everywhere. Here in this poem we see that poet gives here some examples how he remembers his mother. Here the poet says, when during my childhood I used to play with my playthings, a tune, I heard a tune hovering over my head, and I thought this was the tune of my mother's song, which she was singing when she was rocking my cradle. And at that time, while playing, he thought of his mother and the voice he heard and the tune he heard during playing with his playthings. He heard the tune of his mother. In the same way, White says in this poem that I smell the fragrance of the shuri flowers. This also reminds me of my mother. The poet's mother had been very religious minded. She used to visit temple in the morning with shuri flowers. Poet also says that the scent of the morning temple service also remind me
of my mother. In this poem, the poet feels the presence of his mother everywhere. यानी शायर को हर जगह अपनी माँ की तस्वीर जो है दिखाई देती है, अपनी माँ की ये यादें जो हैं आती हैं। इसके साथ साथ शायर कहता है, पोइट कहता है, when while sitting in my bedroom I look through the window, I feel, when I look towards the far and distant sky, I feel the presence of my mother. I feel my mother bends to me and she looks to me. He also feels the presence of his mother on the distant sky. So, this was the simple description of this poem. Let us recite this poem and see how does the poet remind his mother in this poem. I cannot remember my mother, only sometimes midst of my play. Only sometimes midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. I cannot remember my mother, but when in early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to comes to me as the scent of my mother. I cannot remember my mother, only when from the bedroom window I sent my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. So let us see the first line and first stanza of this poem. I cannot remember my mother, only sometimes midst of my play. Here in these lines, the poet says, I have no any idea about my mother, but when I play with my playthings, अपने खिलौनों के साथ जब शायर खेलता है, a tune seems to hover over my playthings, अचानक उसको एक ट्यून सा, एक सॉन्ग सा महसूस होता है इसके ऊपर से, और शायर क्या महसूस करता है, ये वही सॉन्ग है जो मेरी माँ, जिसको हम लुलैबी कहते हैं, यानी क्रैडल सॉन्ग, कि जो मेरी माँ झूला झुलाती हुई, मेरा झूला झुलाती हुई गाती थी. तो लुलैबी हम क्रैडल सॉन्ग को बोलते हैं, क्रैडल सॉन्ग. जब माएँ अपने बच्चों का झूला झुलाती हैं, तो और वो जो सॉन्ग जो वो गाती हैं अपने बच्चे को सुनाने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे को सुनाने के लिए माएँ जो गीत गाती हैं उसको हम लुलैबी कहते हैं. तो शायर कहता है, यहाँ टैगोर यहाँ कहता है कि यही सॉन्ग मुझे महसूस होता था जब मैं खेलता था अपने खिलौनों के साथ. तो वही सॉन्ग, वही आवाज में समझता था कि ये मेरी माँ का वही आवाज मेरे कानों में आती थी, और मैं समझता था कि ये मेरी माँ की वही आवाज है जब वो बचपन में मेरा झूला झुलाते हुए गाती थी. I cannot remember my mother, but when in early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air. Again, दूसरी रिकलेक्शन जो शायर अपनी माँ के बारे में कहता है कि दूसरे स्टिंजा में, तो फिर ये यही चीज दोहराता है कि मुझे अपनी माँ की कुछ पता नहीं है. I know nothing about my mother, but when in early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air. So here also poet हमें कहता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन सुबह के वक्त जब शूली के फ्लावरों की महक, उनकी खुशबू, उनकी फ्रेग्रेंस जब मैं स्मेल करता था, हवा में जब ये फ्लोट करती थी, शूली के फ्लावरों की ये जो खुशबू है, तो मुझे अपनी माँ याद आती थी. This gave me an idea of my mother. This recollected me the idea of my mother. This was the recollection of my mother. So here he says, here it means that the poet's mother was a religious lady. She used to visit temples in the morning
for with the shuli flowers as the morning service. So the smell of the shuli flowers in the when float in the air, the poet thought it that it was the smell of my mother. The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. तो अगेन शायर हमें यहाँ कहता है कि जब मैं सुबह के वक्त में शूली के फ्लावरों की जब मैं टेम्पल में सेंट की महक हवा में पाता था तो यहाँ भी मुझे अपनी माँ याद आती थी। तो मैं ये सेंट समझता था ये मेरी माँ की ही वो खुशबू है, वो सेंट है, जो सेंट उस वो फूल लेकर जब वो मंदिर की तरफ जाती थी और पूरी फिजा जो है इस खुशबू से महक जाती थी और उस वक्त भी मुझे अपनी माँ याद आती थी। I cannot remember my mother only when from the bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. यहाँ लॉस्ट में फिर पॉइंट हमें ये यहाँ बताता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में कोई पता नहीं है, कोई मुझे उसका कुछ फेंट आइडिया भी नहीं है, लेकिन जब मैं अपने बेडरूम में बैठा होता हूँ और जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, इस डिस्टेंट और दूर दराज आसमान की तरफ, नीले आसमान की तरफ जब मैं देखता हूँ तो अपनी बेडरूम के खिड़की से जब मैं देखता हूँ तो माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, तो ये फार ऑफ, ये दूर दराज आसमान जो मुझे दिखाई देता है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। तो उस वक्त भी मैं अपनी माँ की नजर अपने ऊपर देखता था, मैं अपनी माँ को यहाँ देखता था। हैज सेपरेट ऑल ओवर द स्काई, तो एक तो मैं ये देखता था कि इस नीले आसमान की तरफ देखकर मुझे ये याद आता था कि मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है, और आसमान के बुलंद किनारों पर भी मुझे माँ की प्रेजेंस महसूस होती थी। आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ माई मदर ऑन द डिस्टेंट स्काई, तो आसमान के बुलंद किनारों पर भी मुझे माँ की प्रेजेंस मालूम होती थी। तो मतलब ये है कि शायर यहाँ हर चीज में अपनी माँ की तस्वीर देखता है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये पोइम जब हम देखते हैं इसमें कोई राइम स्कीम भी नहीं है, और दूसरी चीज इसमें जो है लाइन्स भी जो इसकी हैं ये यूनिफॉर्म भी नहीं है, और ये इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन लाइनों में भी, लेकिन इसके बाद भी ये पोइम जो है ये बहुत ही हमारे सेंस ऑर्गन्स को अपील करती है। तो ये इस पोइम की एक इमेजिनेटिव, ये इसकी इमेजिनेशन है, और ये एक बहुत पोइम की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये एक पढ़ने वाले के सेंसेस को पढ़ने वाले के सेंसेस को जब अपील करे, तो यहाँ ये पोइम जो है ये हमारी विजुअल सेंसेस को भी अपील करती है और हमारे ऑरल सेंसेस को भी अपील करती है। फिलहाल ये विजुअल सेंसेस हमारे क्या हैं, तो जब हम विजुअल सेंसेस की बात करेंगे तो विजुअल सेंसेस में हम ये देखेंगे the smell of the shuli flowers floats in the air, यानी the smell of shuli flowers, ये यहाँ विजुअल, इट इज विजुअल, ये यहाँ विजुअल, हमारी विजुअल सेंसेस को यहाँ अपील करती है, विजुअल सेंस। इसी तरह द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, ये भी यहाँ विजुअल इमेज है, ये भी हमें विजुअल इमेज को ये अपील करती है। और दूसरा है ए ट्यून हाउरिंग ओवर माई प्लेथिंग्स, ए ट्यून हाउरिंग ओवर माई प्लेथिंग्स। यहां जो देखते हैं
ये हमारे ये हमारे ऑरल सेंसेस को अपील करता है, ऑरल सेंसेस। इस तरह से ये पॉइंट जो है, इसमें हमारे जो है, इसमें एक इमेजिनेशन है, ये डायरेक्टली हमारे सेंसेस को अपील करती है, हमारी विजुअल सेंसेस को भी और हमारे ऑरल सेंसेस को भी अपील करती है। और अब यहाँ हम देखेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। हॉवर, हॉवर का मतलब है कि टू रिमेन मोशनलेस इन एयर। हॉवर, टू रिमेन मोशनलेस इन एयर। मोशनलेस इन एयर, जमीन से ऊपर थोड़ा हवा में रुके रहना। समटाइम्स ए बर्ड हावर्स इन द एयर, कभी जानवर भी हवा में रुके रहता है, उसको भी हम हावर कहेंगे। बर्ड इज हॉवरिंग इन द एयर। तो इसी तरह हम कह सकते हैं, ये जो दूसरा जो यहाँ सीखने की बात है, वो यहाँ हमें ये जो डिस्टेंट, डिस्टेंट, इसका साइनोनिमस है, साइनोनिमस इसका है फार ऑफ। फार ऑफ सिकाई, डिस्टेंट सिकाई। और स्टिलनेस, स्टिलनेस इसका साइनोनिमस है, मीन्स कॉमनेस और कॉमनेस। Calmness. So this is all about this poem. This poem, though we find it has no rhyme scheme, but it appeals to our senses directly. So it is very imaginative piece written by Rabindranath Tagore. This is all for today. Inshallah. Assalamu alaikum.